Hello everyone. This is the second video of lesson number 9. Name of the lesson is SCF LCM. In the first video we have seen how to find out the factors of the given number, and then in that finding common factors of the given numbers. Okay. Now the finding factors is also related with this SCF. Okay. Now here one example is given, short example. Okay, in this we will understand how to find out SCF and its uses. Okay, उसका फायदा क्या है? Okay, SCF क्यों पढ़ना है? Okay, how we can use the concept of SCF in our day-to-day life. Okay, first understand the SCF. Highest common factor. It's called as SCF. ये क्या है इसका long form. Okay, highest common factor means what? In these 3 steps are included. Okay, first find out the factors of given numbers. Okay, second step is write the common factors, and third step is from those common factors which is the highest number, that is called as SCF or highest common factor. Let us learn the example. My aunt has brought 2 ribbons. These are the 2 ribbons of different colors. One ribbon of 12 meters long and the other 18 meters. Okay, this ribbon is of 12 meters, this ribbon is of 18 meters. Both the ribbons have to be cut into pieces of the same length. ये दोनों रिबन के पीसेस करने हैं. ओके, लेकिन पीसेस कैसे होने चाहिए? दे शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, and condition, what condition is given? Okay, that no piece should remain. Okay, ऐसा नहीं कि 1 मीटर बच गया, आधा मीटर बच गया, ऐसा भी बचना नहीं चाहिए. Okay, लेकिन both the ribbon should be cut into equal parts, or we can say the parts of equal length. Then question पूछा है, what should be the maximum length? Here what word is used? Maximum. Okay, यानी जहां पर मैक्सिमम वर्ड का कनेक्शन आता है, ज्यादा से ज्यादा का ऐसा कनेक्शन आता है, देन उससे क्या रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विथ SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी इसका मतलब क्या है? पहले मतलब समझते हैं उसका. ओके, कि ये दोनों पीस, ये 12 मीटर का है. ओके, एंड दिस इज ऑफ 18 मीटर. ओके, ये रिबन के अब इक्वल पीसेस तो वैसे भी कर सकते हैं. सपोज 1-1 मीटर के कर दिए तो इसके 12 पीस हो जाएंगे, इसके 18 पीस हो जाएंगे, हो गए इक्वल लेंथ के पीसेस. ओके, बट व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस? यानी ज्यादा से ज्यादा लंबे पीस निकालने इससे. ओके, और इक्वल भी होने चाहिए, कुछ बचना भी नहीं चाहिए. ओके, देन फॉर दैट वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ SCF. Okay, now how it happens, how it goes on. The number which gives the length of each piece must be a factor of 12 and 18. Okay, जो नंबर वो एक पीस की लेंथ का मेजरमेंट देगा, वो क्या होना चाहिए? वो 12 का भी फैक्टर होना चाहिए, 18 का भी फैक्टर होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? उस नंबर के अगर वो जो भी नंबर मिलेगा, जो भी नंबर है, ओके, उसकी जो लेंथ है वो 12 से 12 को डिवाइड करनी चाहिए. उसका मतलब क्या है? वो 12 मीटर के इक्वल पीसेस बना देगा. ओके, सेम नंबर वो 18 मीटर के भी इक्वल पीसेस बना देगा. ओके, देन फॉर दैट पर्पज व्हाट इज द मेथड? सेकंड मेथड, फाइंड द फैक्टर्स. तो फैक्टर्स ऑफ 12 यानी 12 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से? तो 1, 2, 3, 4, 6, 12. These are the factors of 12. Then factors of 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. These are the factors of 18. Right? Then in this, what are the common factors? Here common factors are not written, but we have to understand it. Common factors क्या है? 1, 2, 3, then 6. These are the common factors. Now in this, which is the biggest one? 6 is the biggest one. So here, now see here box is made for 6. यानी जो SCF है उसको बॉक्स किया है. ओके, तो ऑफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18, 6 is the greatest. Therefore
द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस शुड बी 6 मीटर, यानी ये दोनों पीस को कितने मीटर में कट करना पड़ेगा? 6 मीटर में। अब देखो ये 12 मीटर है तो इसके 6 मीटर के दो पीस बना दिए। ये पीस बन गया 6 मीटर का, ये पीस बन गया 6 मीटर का। ओके, ये जो पीस है इसके भी 3 पीस बना दो। ये 18 मीटर है तो 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। ओके, तो हो गए इक्वल पीस। या ऑल दीज 5 पीसेस आर ऑफ 6 मीटर लेंथ। ओके, इक्वल लेंथ भी हो गई, कई पीस भी नहीं बचा, 1 मीटर 2 मीटर कुछ बचा नहीं है। ओके, दिस इज द यूज ऑफ एससीएफ। ओके, ऐसा कौन सा भी जो मैक्सिमम मेजरमेंट अगर कुछ निकालना है, मैक्सिमम कैलकुलेशन कुछ करना है जिससे कि उस दोनों नंबर में की कॉमन में जो मैक्सिमम वैल्यू वो निकालनी है, तो फॉर दैट पर्पस or for that calculation what we have to use? SCF method we have to use. Alright, let us move ahead to the second solid example. Here is the second solid example. What is the example? First let us understand the example. There are 20 kg of jawar. How much jawar is there? 20 kg and 50 kg wheat. Okay, 20 kg jawar, 50 kg wheat in a shop. All the grain, यानी ये सारे जवार wheat, all the grain is to be packed in bags. Okay, ये जो है 20 kg जवार है, 50 kg wheat है, ये क्या करना है इसका? It is to be packed in the bags. Okay, if all the bags are to have equal weights of grain, लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे के सारे बैग्स में इक्वल वेट होना चाहिए। ओके, तो वो ज्वार हो व्हीट हो। ओके, देन व्हाट इज द मैक्सिमम? हियर व्हाट वर्ड इज नाउ सी हियर, स्पेशली दिस वर्ड इज यूज्ड, मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन दैट कैन बी फील्ड इन ईच बैग। ओके, तो हर एक बैग में ज्यादा से ज्यादा कितने केजी ग्रेन्स हम लोग भर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जब ऐसा आता है तो इन द प्रीवियस एग्जांपल आई एक्सप्लेन, व्हेन द कनेक्शन ऑफ मैक्सिमम कम्स देन देयर व्हाट कम्स? एससीएफ। एससीएफ मेथड वी हैव टू यूज। ओके, देन हाउ इट इज सर्व्ड? द वेट ऑफ द ग्रेन इन ईच बैग मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 50। ओके, ये फैक्टर क्यों होना चाहिए? देन ओनली इट विल गेट इक्वली डिवाइडेड। ओके, उस कुछ बचेगा भी नहीं, ओके, कुछ रहेगा भी नहीं। एंड देन बिसाइड्स द मैक्सिमम पॉसिबल वेट मस्ट बी फील्ड इन ईच बैग। हाउ मच वेट? मैक्सिमम पॉसिबल वेट मस्ट बी फील्ड इन ईच बैग। हेंस लेट अस फाइंड द एससीएफ ऑफ 20 एंड 50। तो इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें? एससीएफ किसका? 20 और 50 केजी का। ओके, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स यहां पर लिखे 1 2 4 5 10 20। ओके, अब ये फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नाउ इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। ओके, यानी ये जो सारे नंबर है ये सारे नंबर 20 को डिवाइड करते हैं, यानी इन नंबर के टेबल में 20 मिलता है। ओके, जिस नंबर के टेबल में 20 मिलता है वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स। देन फैक्टर्स ऑफ 50, 1 की टेबल में होता है, 2 की टेबल में होता है, 5 10 25 एंड 50। बस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 50। अभी इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 5 एंड 10। दीज आर द 4 कॉमन फैक्टर्स। इसमें से फ्रॉम दीज कॉमन फैक्टर्स विच इज द हाइएस्ट? द हाइएस्ट इज 10। सो व्हाट इज द एससीएफ? एससीएफ इज इक्वल टू 10. Right? So of the common factors of 20 and 50, 10 is the greatest. That is 10 is the SCF of the numbers 20 and 50. ये 10 क्या हो गया? SCF हो गया। ओके, यानी SCF हो गया, इसका मतलब क्या है? ये 10 बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को भी डिवाइड करता है। राइट, बड़े से बड़ा नंबर। ओके, क्योंकि हमें एससीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 10। देयरफॉर उसका मतलब क्या है
कि द मैक्सिमम ऑफ 10 kg ऑफ ग्रेन कैन बी फील्ड इन ईच बैग। तो हर एक बैग में कितना भर सकते हैं? 10 kg। अब देखो 10 kg के कितने बैग बनेंगे? 2 बैग्स। 10 kg के कितने बैग्स बनेंगे? 5 बैग्स। कुछ बचता है क्या? जवार भी बचता नहीं है, व्हीट भी बचता नहीं है। ओके, उससे ज्यादा का अगर सोचेंगे, सपोज 20 kg का अगर एक बैग बनाए तो इसमें 20 kg के 2 बैग बनेंगे, फिर भी 10 kg रहेगा। ओके, होता नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना भर सकते हैं? 10 kg हर एक बैग में। तो इसके 2 बैग बनेंगे, इसके 5 बैग बनेंगे, कुछ जवार बचेगा नहीं, कुछ व्हीट भी बचेगा नहीं। राइट, इन दिस वे इट इज डन। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव लर्न। ओके, हमें क्या सीखने के लिए मिला है? नाउ आई नो टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, जो भी नंबर्स दिए उसका अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वी मेक अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। ओके, जो भी नंबर्स दिए उसके क्या करनी है? एक लिस्ट बनानी है। किसकी? फैक्टर्स की। हम लोग जो फैक्टर्स लिखते हैं ना, ओके, ये जो फैक्टर्स लिखते हैं, ऐसी फैक्टर की एक लिस्ट बनानी है। ओके, ऑफ द नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। और उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है? एचसीएफ। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 24. Okay, in this how many questions are given? Question number 1, 2, 3, 4 and 5. Total 5 questions are given. Okay, let us see these 5 questions one by one in the notebook. I will explain it in the notebook. Okay, in question number 1, how many examples are there? 10 are there. Okay, here we start with the practice set number 24. Question number 1, in that first example is given, the numbers are given 45 and 30. Okay, so what is the first step of finding HCF? First we have to write the factors. So factors of 45, and then on next line we have to write factors of 30. फैक्टर्स का मतलब क्या है? कि जिस नंबर से ये 45 और 30 को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नंबर्स लिखना है। तो 45 को कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1, 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, देन 3, 4 से भी नहीं होता है, 5 ऐसा अगर ढूंढ लेंगे तो मिलेगा कि देयर आर 6 नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ 45। जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 45 को। तो ऐसे 30 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर है? 1, 2, 3, देन 5, 6, 10 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है, 30 से डिवाइड होता है। ओके, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 2 नंबर्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज फॉर राइट कॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है? दोनों नंबर में दिखाया मिलते हैं फैक्टर्स। 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, देन 9 नहीं, 6 नहीं, देन 15 कॉमन है। ओके, बस दीज आर द 4 कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 15। ओके, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। सो व्हाट इज द आवर आंसर ऑफ दिस? द एचसीएफ ऑफ 45 and 30 is 15. Right? Let us move to second example. Second example, numbers are given 16 and 48. Write the factors. Factors of 16, factors of 48. Okay. Then what are the factors of 16? 16 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर है? 1, 2, 4, 8, 16. 48 को डिवाइड करने वाले 1, 2, 3, 4, 6, 8, then 12, then 16, then 24 to the 48 and then 48. Okay, then common factors दोनों में भी मिलते हैं। ओके, जो कॉमन है देखो 1, 2, 4, 8 एंड 16। देखो 8 मिलता है यहाँ पर 16।
Okay, so in this, which is the greatest number? 16. So write the answer. The SCF of 16 and 48 is 60. Alright, let us move to third example. The third example, numbers are given 39 and 25. Then write the factors of 39. What are the factors of 39? 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 13 से होता है, 39 से होता है. 25 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर्स हैं? 1, 5 एंड 25. बस. देन कॉमन फैक्टर्स. व्हाट आर द कॉमन फैक्टर? दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है. ओके, ग्रेटेस्ट 1 ही है. सो देयरफॉर द SCF of 39 and 25 is 1. Right? Let us move to fourth example. In fourth example, numbers are given 49 and 56. Okay, let us start. We have to write the factors of 49 and 56. What are the factors of 49? 49 को डिवाइड करने वाले नंबर्स है 1, 7 and 49. These are the factors of 49. 56 को डिवाइड करने वाले 1, 2, 4, 7, 8, 14, then 28 and then 56. Okay, then write common factors. What are the common factors? 1 and 7. बस बाकी कुछ कॉमन नहीं है. Okay, so what is the HCF? The HCF of 49 and 56 is 7. Right? कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा वो क्या होता है? HCF. Now let us move to fifth example of question number 1. Numbers are given 120 and 144. Okay. So factors of 120, factors of 144. Okay. तो 120 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हैं? नंबर बड़ा है तो उनकी लिस्ट भी बड़ी होगी अब. राइट, तो 1 है, 2, 3, देन 4, 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है. ओके, 8, 10, 12, 15, देन उसके बाद 20 से होता है डिवाइड, देन 24, 30, 40, 60 and 120. All these many numbers divide 120. Okay, वैसे 144 के 1 तो होता ही है सबका. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, then 24, 36, 48, 72 and 144. These are the factors of 144. Now we have to write common. Which are common to both? Common factors. Observe and come on. Let us write. 1 common है, 2 common है, 3 common है, then 4 is common, 6 is common, then 8 common है, then 12 common है, then after 12 what is common? 24 common है, then after that nothing is common. Okay, in this which is the biggest one? Common में सबसे बड़ा
24. So therefore, the SCF of 120 and 144 is 24. Right? Let us move to sixth example. Numbers are given 81 and 99. Okay, factors of 81. And factors of 99. Okay, what are the factors of 81? 81 को डिवाइड करने वाले नंबर्स है 1, 3, 9, 27, 81. These are the factors of 81. Then 99 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर है 1, 3, 9, then 11, 33 and directly 99. Okay, then common factors. क्या कॉमन फैक्टर्स हैं? कॉमन में 1, 3, 9 और बस इतना ही आता है. इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 9. ओके, सो देयरफॉर आवर आंसर द एचसीएफ ऑफ 81 and 99 is 9. Right? Let us move to example number 7. Numbers are given 24 and 36. Let us write the factors. पहले क्या लिखना है? फैक्टर्स लिखने हैं. तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, then 12 and 24 are the factors of 24. 36 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, then 9. 9 4 is 36. Then 12, then 18, and then 36. Okay, common factors. Now I will not explain in much detail. Okay, because already you have understood the method. Okay, so let us write the common factors. तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 6, then 12. बस इतना ही आता है. सबसे बड़ा कौन सा है? 12. So therefore the SCF of 24 and 36 is 12. Right? Let us move to example number 8. Numbers are given 25 and 75. 25 and 75. Write the factors. पहले हमें क्या लिखना है? Factors. What are the factors of 25? 1, 5 and 25. Factors of 75? 1, 3, 5, 15, 25 and 75. These are the factors of 75. Let us write the common factors. What are the common factors? 1 common है, 5 common है and 25 common है. सबसे बड़ा कौन सा है? 25. So therefore write the answer. The SCF of 25 and 75 is 25. Alright? Okay, let us move to example number 9. Okay, this I have written already first before to reduce the length of the video. Okay, 48 and 54. Write the factors of 48. तो 48 के factors क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, then 16, then 24 and 48. These are the factors of 48. 54 के factors 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 and then 54. ओके, तो दोनों के कॉमन में क्या क्या आता है? 1, 2, 3 and 6. सबसे बड़ा क्या है? 6. So answer the SCF of 48 and 54 is 6.
right? The same way, do it for 150 and 225. What are the factors of 150? लिखते हैं 1, 2, 3, 5, 6, then 10, then 15, then 25, then 30. ओके, इन सारे नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. ओके, 75, then 150. These are the factors of 150. Then factors of 225. 1, 3, 2 से तो डिवाइड होता नहीं है. ओके, देन डायरेक्टली 5, 9, 15. 15 के बाद डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर सकते हैं उसको. उसके बाद 45, then 75, and lastly 225. ओके, अब कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो कॉमन में आता है वो 1, देखो ये 3, देन 5, देन 15. यहां पर कंपेयर, दोनों में कंपेयर करके देखना है कौन सा कॉमन में आता है. देन 25, ओके, एंड लास्टली 75 आता है. बस इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 75. तो SCF of 150 and 225 is 75. Right? Now let us move to question number 2. If large square beds of equal size are to be made for planting vegetables, कुछ vegetables लगाने हैं खेती में, उसके लिए बेड्स बनाने हैं. ओके, वो रेक्टेंगल शेप को होते हैं ना. Then on a plot of land 18 meters long and 15 meters wide. 18 मीटर का लंबा प्लॉट है, 15 मीटर का वाइड प्लॉट है. तो उस पर कुछ छोटे छोटे बेड्स बनाने हैं वेजिटेबल्स लगाने के लिए. तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड. तो हर एक बेड यानी वो पेड़ पौधे छोटे छोटे वेजिटेबल्स लगाने के लिए वो बनाते हैं ना, वाफे या कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं. तो उसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी होनी चाहिए? राइट? तो यहां पर व्हेन द मैक्सिमम वर्ड इज यूज मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? SCF. सो लेट अस फाइंड आउट SCF ऑफ 18 एंड 15. दैट विल बी द आंसर. सो वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ 15 एंड 18. So here we have to, as it is word problem, we have to clearly mention to find the maximum possible length of a bed. We have to find the SCF of 18 and 15. Alright, as it is word problem, so we have to write everything. So according to our this above method, factors of 18, then factors of 15. What are the factors of 18? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Factors of 15, 1, 3, 5 and 15. Then next step, common factors. What are the common factors? 1, 3, then nothing, only 1 and 3 is there. Okay, इसमें बड़ा कौन सा है? 3. So therefore the greater number there is 3. So therefore now write the answer. What is the answer? The maximum possible length of each bed should be, or even we can write is 3 meters. 3 meters. Right? Let us move to example number 3. What is the example? 2 ropes, one 8 meter long and the other 12 meter long.
दो रोप है, एक की लंबाई 8 मीटर है, दूसरे की लंबाई 12 मीटर्स लॉन्ग, आर टू बी कट इनटू पीसेस। इनको कैसे क्या करना है, इनको पीसेस में कट करना है, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था शॉर्ट एग्जांपल में रिबन का। ओके, द सेम वे आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी? So here what we'll have to do? So here we find the SCF of 8 and 12. Okay, 8 मीटर एंड 12 मीटर दिया है ना, तो दोनों का SCF फाइंड आउट करना है, राइट? देन फाइंड राइट द फैक्टर्स ऑफ 8. What are the factors of 8? 1, 2, 4 and 8. What are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Then write the common factors. Common factors 1, 2, 1, 2 and 4. सबसे बड़ा कौन सा है? 4. So what is the answer of our this question? The maximum possible length of each piece of rope is 4 meter, right? Question number 4 is the number of students of standard 6th and standard 7th who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. Okay, स्कूल का एजुकेशनल टूर था, कौन से बच्चों का? 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का। ओके, तो 6 स्टैंडर्ड के कितने बच्चे थे? 140, 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे 196। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जो पहला क्लास दिया है उनका पहला नंबर, जो दूसरा क्लास दिया है उनका दूसरा नंबर। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ओके, ये जो स्टूडेंट्स दिए 140 एंड 196, इनके ग्रुप्स बनाने, नेचुरली इक्वल ग्रुप्स बनाने ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ईच ग्रुप कैन हैव अ पेड गाइड। ओके, उनको एक गाइड देना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर कैन बी इन ईच ग्रुप एंड वाई? ओके, तो हर एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए और उसका रीजन देना है वाई। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फॉर द एग्जाम। व्हाट नंबर्स आर गिवन? 140 and 196 students are there, right? Then find the factors of 140. Then we write factors of 196. Okay, 140 के factors क्या है? 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, then 35, then 70, then 140. Okay, these are the factors of 140. 196 के 1, 2, 4, 7, 14, 28, then 49, then 98, and lastly 196. Okay, common factors क्या क्या होते हैं आते हैं इसके? What are the common factors? 1, 2, 4, 7, देख लो ऊपर 7, then 14 and 28. What is the biggest number? 28. So 28 is the greatest of them. So answer क्या आएगा? The maximum number of students, as it is a word problem, so everything we have to write it in words. So the maximum number of students in each group is 28. Okay,
कितने बच्चे होने चाहिए एक एक ग्रुप में? 28। रीजन क्या है? अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे दिए तो कम से कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पेड गाइड देना है. सो व्हाट इज द रीजन? तो नीचे लिखो रीजन. सो दैट ईच ग्रुप would have equal number of students under each guide and the एक्सपेंडिचर उसमें थोड़ा सा मेन पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ गाइड्स, यानी ज्यादा गाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उनको ज्यादा गाइड दिए तो ज्यादा पैसा बढ़ेगा. ओके, तो ये जो ज्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है वो बचाने के लिए ये करना पड़ेगा. ओके, सो दैट व्हाट, and the expenditure of excess number of guides can be reduced. Right? Okay, this is the answer of number 4. Okay, now I want to move to example number 5. Okay, the last example, but seeing the length of the video, now almost it has completed 36 minutes. Okay, it will become too much more. Okay, so last example number 5 I am giving you for your self study. Okay, you have to solve it on your own. Okay.